Students, in this lecture we will be discussing about the last unit of mobile computing that contains all the topics related to ad hoc networks, infrastructure-less networks, MANET, and some other routing algorithms. All these topics will be covered in the fifth unit. So, first of all, I would like to recall some topics which we have studied in unit first. Like in unit first, you have studied about the cellular network or a wireless mobile network, in which we have some components like PSTN, Mobile Switching Center, that is known as MSC, and you are very familiar with these terms: MSC, BSC, VLR, HLR. You know about these, right? So in this lecture, we will be discussing about the ad hoc network first. So an ad hoc network. What is an ad hoc network? क्या होता है ये ad hoc network? It is a wireless network which is decentralized. यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं, राइट? फर्स्ट, ad hoc network is decentralized type of wireless network. Decentralized मतलब ये कहीं पर भी फिक्स नहीं होता है. The network is ad hoc. ये ad hoc इसलिए है क्योंकि it does not depend on pre-existing infrastructure. इसके लिए मुझे कोई बैकबोन वायर नहीं लेनी है, किसी भी तरीके का AP की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के MSC मुझे नहीं चाहिए, BS नहीं चाहिए, मीन्स मोबाइल स्विचिंग स्टेशन नहीं चाहिए, बेसिक्स जो बेस स्टेशन होते हैं वो मुझे नहीं चाहिए. तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारी सेलुलर नेटवर्क में होती हैं वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है. Instead, each node participate in routing by forwarding data for other nodes. यहाँ पे जितना भी काम होता है उसमें सारे जो नोड्स होते हैं वो टोटली इन्वॉल्व होते हैं और वो राउटिंग भी करते हैं, वो सारा रूट फॉर्मेशन भी करते हैं, रूट मेंटेनेंस भी करते हैं, वो सब काम खुद करते हैं. और सारे के सारे नोड्स की जो डेजिग्नेशन होती है सबकी सेम होती है, कोई मास्टर स्लेव नहीं होता, राइट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more devices. ये ऐसे डिवाइसेस का कलेक्शन है which are equipped with wireless communication and networking capabilities. सिंपल, हमारा जो मोबाइल फोन है या जो मेरा लैपटॉप है वो भी इसका पार्ट हो सकता है, उसकी हेल्प से मैं ये नेटवर्क बना सकती हूँ, राइट? और इसमें आपको किसी भी तरीके की जो नेटवर्क कैपेबिलिटीज हैं वो मेरे लैपटॉप में या फोन में होती हैं, राइट? Such devices can communicate with another node that is immediately within their radio range or one that is outside their radio range. यहाँ पे हम devices को लेकर के वो devices जो एक दूसरे से communicate करना चाहते हैं, those who want to exchange information, और ये कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ जो कि इनकी रेडियो रेंज में होते हैं, बिकॉज वी नो कि जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, हमारा मोबाइल है या लैपटॉप है, इनके अंदर जो भी डिवाइसेस फिट हैं उनकी एक रेडियो रेंज होती है, राइट? एज वी हैव स्टडीड इन ब्लूटूथ की बहुत सारी लेवल्स हैं, वेरिएशंस हैं, और वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं उनकी स्ट्रेंथ पे और उनकी रेंज पे, एंटीना की रेंज पे, राइट? सिंस एन ad hoc network does not rely on any fixed network entities, the network itself is essentially infrastructureless. There is no need for any fixed radio base station, no wire, no fixed router. आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Hence, an ad hoc network is local area network that is built spontaneously, जो तुरंत से बन जाता है, अचानक से, कभी भी कहीं पर भी आप इसे बना सकते हैं. As a device connect, instead of relying on a base station to coordinate the flow of message to each node in the network, the individual network nodes forward packets to and from each other. जब भी हम वाईफाई की बात करते हैं तो वो एक
वायरलेस नेटवर्क तो है, लेकिन जो मेरे मोबाइल वाईफाई से मेरे घर में कनेक्टेड है, उन पे अगर कोई भी मुझे मैसेज ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, तो मोबाइल से पहले वो एक्सेस पॉइंट तक जाएगा, एक्सेस पॉइंट से फिर वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। सो एक्सेस पॉइंट किसी बैकबोन से कनेक्टेड होता है, और ये सारी चीज एडहॉक नेटवर्क में नहीं होती है, राइट? In this, here you can see the major categories of ad hoc network. This can be divided into two categories on the basis of network infrastructure, right? First, infrastructure based network hota hai, second hota hai infrastructure less network. A network with pre-constructed infrastructure that is made of fixed nodes and gateways. जैसे कि cellular network हो गया, लेकिन which are built from PSTN, MSCs, BS is known as base station, mobile host और wireless LAN भी infrastructure based network में ही आता है, right? Second आता है हमारे पास infrastructure less network. In this case, network is formed dynamically through the cooperation of an arbitrary set of independent nodes. जैसे कि nodes कौन हो सकते हैं? Two mobiles, two या PCs हो सकते हैं equipped with wireless adapter card. इस तरीके की चीजें अगर उसमें होती हैं तो वी कैन क्रिएट इंडिपेंडेंट नेटवर्क वेन एवर एंड वेयर एवर दे आर विद इन दी रेंज, कहीं पर भी जहाँ वो रेंज में होंगे वहां बनाया जा सकता है. नेटवर्क इज डिसेंट्रलाइज. रिमेंबर हमने पिछली स्लाइड में देखा है, नेटवर्क जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, हैव डायनामिक टोपोलॉजी. In mobile ad hoc network, nodes are expected to behave as router. Nodes ही router का भी काम करते हैं and take part in discovery and maintenance of the routes. ये सब काम nodes ही करते हैं. In this, you can again understand this concept of ad hoc network. Here in this diagram, you can see ad hoc network, infrastructure less, and ad hoc network which is infrastructure based. BSS with an AP, और यहाँ पे सारे कैसे हैं, इधर वाले में BSS है, सारे बेसिक सर्विस सेट है, सारे के सारे स्टेशंस हैं, कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है. तो इस वाले में जितने भी नोड्स हैं वो सारे एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं. तो डायरेक्ट मैसेज जब हम भेजते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क में आपने पढ़ा है टोपोलॉजीज, और वहाँ पे ऐसी टोपोलॉजी सिर्फ एक होती है, मैश टोपोलॉजी, जहाँ पे मुझे किसी भी मिडल मैन की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, हम एक नोड से दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, राइट? और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में हमारे पास एक एपी होना जरूरी है. तो अगर मुझे एक नोड से दूसरे नोड को मैसेज भेजना है तो आई नीड अ एपी, जिसके थ्रू ही मेरा जो मैसेज होगा वो ट्रैवल करेगा, राइट? Ad hoc network therefore refers to networks created for a particular purpose. They are often created for one time or temporary usage. Ad hoc networks are comprised of a group of workstation or other wireless devices which communicate directly with each other to exchange information. Next comes the comparison between these cellular network and ad hoc network. इन दोनों में अंतर क्या है, right? तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है. Here you can see network routing. सेलुलर नेटवर्क जो होता है सेंट्रलाइज्ड होता है, यहाँ पे एमएससी होगा, बीएससी होगा और बहुत सारी चीजें होंगी. और एडहॉक नेटवर्क जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जहाँ पे कोई बेस स्टेशन की जरूरत मुझे नहीं होती है. स्विचिंग की टाइप की बात करें तो यहाँ पे स्विचिंग सर्किट स्विचिंग यूज होती है, यहाँ पर पैकेट स्विचिंग यूज हो रही है. सेलुलर नेटवर्क हमेशा सिंगल हॉप होता है और ये हमेशा मल्टी हॉप होता है. टोपोलॉजी जैसे मैंने बताया था, एडहॉक में मैश टोपोलॉजी का यूज करते हैं एंड स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड इन सर्कुलर सेलुलर नेटवर्क्स, राइट? एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट फॉर वॉइस ट्रैफिक के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे चैनल जो होता है वो डेडिकेटेड चैनल मिल सकता है. एडहॉक नेटवर्क में चैनल मेरा शेयर्ड होता है तो वहाँ पे बैंडविड्थ की काफी प्रॉब्लम हो जाती है. डिजाइन टू मीट बेस्ट एफर्ट डेटा ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स. हायर कॉस्ट एंड टेक्स मोर टाइम फॉर डेवलपमेंट. इसको बनाने में, इंस्टॉलेशन करने में मुझे ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट एडहॉक नेटवर्क अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता, कॉस्ट भी कम लगती है. कॉल ड्रॉप्स
सेलुलर नेटवर्क में जहाँ पे हम हमेशा कनेक्टेड है एक सेंट्रलाइज नेटवर्क से, जो बार बार बदल नहीं रहा है, अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है, नोड्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, उस केस में हमारे सेलुलर नेटवर्क पे कॉल ड्रॉप्स बहुत कम होती है, सीमलेस कनेक्टिविटी होती है अक्रॉस द रीजन। एडहॉक नेटवर्क्स में हायर ब्रेक्स होते हैं इन द पार्ट ड्यूरिंग मोबिलिटी। नेटवर्क मेंटेनेंस रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस। सेलुलर नेटवर्क को जो हमने डिवाइसेस फिक्स कर दिए हैं, दे नीड अ पीरियोडिक और रेगुलर मेंटेनेंस। उनको हमेशा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि कॉस्टली होता है, क्योंकि वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक बार स्टैब्लिश कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो वो बना रहेगा, राइट। लेकिन एडहॉक नेटवर्क किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। अभी मेरा कुछ पर्पस है, मुझे कुछ काम करना है, तो मैंने एडहॉक नेटवर्क बनाया, अदरवाइज काम पूरा होने के बाद उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो उस केस में उसे मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नोड्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड हेंस इट इज लेस कॉस्टली। Frequency reuse, it utilizes same frequency channel in the nearby cells with proper radio frequency planning and antenna placement. जैसे एंटीना की प्लेसमेंट हमने बहुत सारे तरीके की पढ़ी है, ओमनी डायरेक्शनल और अदर्स, तो वो सब सेलुलर नेटवर्क में जरूरी है। एडहॉक नेटवर्क में is dynamic frequency reuse is employed using carrier sense mechanism. Bandwidth, the allocation of bandwidth is guaranteed and easy. यहाँ पर जो bandwidth होती है उसका allocation हमारे लिए काफी गारंटीड है कि हमारा जो काम है वो बीच में नहीं रुकेगा और हमें प्रॉपर जो है सिग्नल्स और बैंडविड्थ मिलेगी। जैसे मैंने एडहॉक नेटवर्क में बताया कि इट यूजेस अ शेयर्ड चैनल, तो यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे को होती हैं और काफी सारे बैक इश्यूज भी जनरेट होते हैं। लास्ट इज दी टेक्नोलॉजी। जीएसएम में यूज होता है सेलुलर नेटवर्क, सीडीएमए, एलटी, वोल्ट, और एडहॉक नेटवर्क हमारा जो है इसमें क्या यूज होता है, वायरलेस लैन, राइट। इन दिस डायग्राम हम थोड़ा और क्लियर समझ सकते हैं कि व्हाट इज अ सेलुलर नेटवर्क और एडहॉक नेटवर्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम इन एग्जाम्स, यू हैव टू मेक डायग्राम्स आल्सो। लास्ट, अब हमें सिर्फ ये बताना है कि एडहॉक नेटवर्क की जरूरत क्या है, कि हमें एडहॉक नेटवर्क चाहिए क्यों, ये एक क्वेश्चन जनरेट होता है, क्यों चाहिए। दीज आर दी फ्यू पॉइंट्स। इट कैन बी मेड एनी टाइम विद नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, can be made for a short period of time because nodes and devices can join together to make up a single ad hoc network. Every node owns a equal position or status or designation in the network. They are closed network that do not connect to internet and basically created between two or more participants. वही चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं कि एडहॉक नेटवर्क क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत इसको नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, बनाना आसान है, जल्दी बन जाता है, काम पूरा हो जाने के बाद हमें इसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। जो डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं, सिर्फ उनके बीच में ही इसे बनाया जा सकता है और ये जल्दी बन जाता है। थैंक यू फॉर दिस।